Hello everyone, this is Vanessa Azam from the platform of my own Instagram, and this video in the entire session will be uploaded on my YouTube, Selvedarmia, my personal professional IGTV, Selvedarmia and Vanessa Azam. And I have Saima here as I was having a lot of queries for self development, जो कि मैं अक्सर बात करती हूँ बिजनेस सेल्स से रिलेटेड. But when I started having such queries, so I was like, okay, fine, this is one of the main component in our own lives, that we need to fix our life in the base and the groundings of our own selves, and then we can start contributing in the society and in ourselves. So I have Saima Sadiq. I want to give her a short introduction. Her passion, I want to start through a passion, and then I'm going to share what experiences that she has. Her life passion is transforming life for good, as that people can enjoy their life and reach success in their personal professional lives. She is a transformation coach and HR professional. She had worked with two big groups. One is Hashim Group of Pakistan and Abari Group. She also worked with many education institutions, NGOs. She is trained in a variety therapeutic techniques used to address different ailments and education disorders such as depression, anxiety, stress, anger management, lower self-esteem, and grief. So here we are with Saima, and I want her to give, 2 cents from her own self. And well, hello everyone. I'm so excited to be here, and first of all, thank you, Melissa, for inviting me here. And I also appreciate all of you and the people who are listening to me and watching me right now for taking out your special time, especially for self-improvement. And so today we are going to talk about anger management. yes, we are going to talk about anger management. Questions, and over to you, Melissa. So my very first question is, what is anger? Anger. Actually, anger is an emotion. Anger is an emotion, and emotion is a state of mind which indicates that something is wrong and needs to pay attention, right? और anger, गुस्सा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जो aggression आता है वो जो है उसको it's not okay. To get angry, it's okay. बट उसके बाद अगर आप कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल अक्सर आपने लोगों को गुस्से में देखा होगा, तो अक्सर लोग पहले तो आवाज़ ऊँची होती है एंड दे बिकम वायलेंट एंड अब्यूसिव, वर्बली अब्यूसिव हो जाते हैं, लोग मर्डर तक कर जाते हैं, लोग ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं तो दूसरों को हर्ट करते हैं. तो ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो हमें थोड़ा वी नीड टू पे अटेंशन, उस पर काम करना चाहिए. और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसको वी मस्ट कंसिडर एज ए गिफ्ट, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू ग्रो इनटू फाइनर एंड मैच्योर ह्यूमन बीइंग. अच्छा, मैं उससे पहले जब हम डेप्थ में जाए क्वेश्चंस के, मैं उससे पहले चाहूँगी टू अंडरस्टैंड व्हाट इमोशंस एंड एनर्जीज आर कंटेजियस टू each other. For example, I'm sitting with you, I know your aura, because usually लोगों को समझ में नहीं आता. There's an aura that we have. We have our own energies. We align to one another, sync spiritually, internally, and with then our heart and mind gets sync once our vibration syncs. So I want you to explain what vibration is in a human body and how it reflects one person to another. Right. Well, vibration is actually it's a state of mind. ठीक है, अगर if आपकी personality, आपके mind में आपका mind disturb है, देखिए आपने बात की emotions, all emotions are contagious, right? अगर आप बहुत इफ़ यू हैव लव, गुड इमोशंस हैं और बैड इमोशंस हैं. अगर जैसे इमोशंस तो अगर आप बहुत इफ़ यू हैव लव, पीस, जॉय, हैप्पीनेस विद इन, ठीक है, तो ये भी कंटेजियस है. आप जिसके साथ बैठोगे उसमें सारी चीज़ें वहाँ पास हो रही होंगी, ठीक है. अगर आपके अंदर एंगर है, एग्रेशन है, रिसेंटमेंट है, ग्रजेस हैं, इरिटेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो वो भी पास हो रही होंगी. तो इसीलिए कहते हैं इट्स लाइक
जिनमें ये सब इमोशंस पाए जाते हैं, तो आप जो है आप में भी वो सारे इमोशंस आ सकते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आप उनके साथ जो है बहुत सोच समझ के बैठें, या तो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप दूसरों को हील कर रहे हो, अदरवाइज जो है आप खुद जो है वीक होंगे और जो है इमोशनली इल हो सकते हैं। So my next question is this energy even anger is also an energy? Yes. Is it a bad energy? And is it really important to show it to the person if you're angry, like I'm angry with you? Do I need to show it to you, or do you think कि मुझे इसको पी जाना चाहिए? अक्सर लोग गुस्सा पी जाते हैं और उससे अगर वो गुस्सा पी जाते हैं तो उसके बाद इंटरनली मुझे लगता है कि आप डिस्टर्ब रहते हैं. इट्स ऑलवेज टू कम्युनिकेट. सो हाउ डू यू सी दिस केस टू यू? हाँ बिल्कुल, गुस्सा जो है एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है. बहुत लोग जो है उसे सप्रेस करते हैं. जब वो हम एंगर को सप्रेस कर रहे होते हैं, रिप्रेस कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वी बिकम स्लेव्स ऑफ aggression, irritability and withdrawal, aggression, frustration, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं. और फिर डेफिनेटली जब सब ये चीज़ें हमारे अंदर रहती हैं तो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट होता है. यू माइट हैव नोटिस जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, जो गुस्सा पी जाते हैं या फिर निकाल भी रहे होते हैं, गुस्सा तो है, तो वो क्या होता है कि वो फिर आपकी हेल्थ को डैमेज कर रहा होता है. और ना सिर्फ हेल्थ को बल्कि आपके जो है आपके रिलेशनशिप्स भी जो है वो अच्छे नहीं रहते. और इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा जब आपको अपने इमोशंस को, एंगर जो है ये आपको इसको यूज़ कर, यू हैव टू लर्न हाउ टू डील विद दैट इमोशन. तो इमोशन जो है इटसेल्फ इज़ नॉट बैड, एंगर इज़ नॉट बैड. So if I'm feeling angry, how do you give me an advice or steps to control it or to behave in certain manner? फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर हम ऑफिस में होते हैं, हमें अपने बॉसेस को गुस्सा आ जाता है. ज़्यादातर हमें अपने कॉलीग्स को गुस्सा आ जाता है. मुझे अक्सर अपने काम वाले को गुस्सा आ जाता है, सही काम नहीं कर रही. ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें भी क्रिएट्स एन इवेंट फॉर योर लाइफ. सो आप मुझे क्या एक स्टेप देंगी कि मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँ जड़ से, अपनी बॉडी अपने माइंड से, अपनी बॉडी से, अपने अंदर से. How can I control this thing and how to overcome in that certain situation if I am feeling angry? मुनीज़ा, पहले तो ये बात है, ये सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की. ठीक है, पहले तो समझने की जरूरत है मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है. देखिए डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ट्रिगर्स, कि वो समझते हैं क्या ट्रिगर है, मुझे क्यों, वजह क्या है, रीज़न क्या है, मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है. और मोस्टली जो एंगर इज कॉज्ड व्हेन थिंग्स डोंट गो वे the way things don't go the way we want or we expect them to, right? Or sometimes when the people when they don't respond or behave the way we want them to, so हम जब वो चीज़ें नहीं होती हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं. ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें गुस्सा होना थोड़ी देर के लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करना है. अच्छा, पहली तो चीज़ अक्सर आपने सुना होगा, फिर आप जल्दी से आप जो है डीप ब्रीदिंग करें, सांस लें और काउंटिंग करें 1 to 10. माइट हैव लर्न ऑल दिस थिंग्स. तो पहली चीज़ तो वो यही है कि आप थोड़ी देर के लिए आप फ़ौरन से अपनी ब्रीदिंग पे आ जाओ. ठीक है, 2-3 लंबी गहरी सांसें लें. तो ये हेल्प क्या करता है, आपको डिस्कनेक्ट करता है आउटर एनवायरनमेंट से और आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है टू थिंक. ठीक है, तो आप रिएक्ट करने की बजाय आप थोड़ा सा सोचते हैं और फिर उसको वो करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. लेकिन बात वही है कि एकदम से ये चीज़ें नहीं आती. हमें जैसे मैंने अभी बोला कि सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की. तो अब सेल्फ अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ, कोई एक स्टेप नहीं होता है कि आप एंगर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और आप उसको कैसे अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं. तो बहुत सारी जो है थेरेपीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको करना है. बिल्कुल इसी तरह जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि एक मेडिसिन लेते हैं, वो नहीं आपको उससे नहीं फ़र्क पड़ता, आप दूसरी ट्राई करते हो. तो कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं, ये प्रैक्टिसेस मैं बोलूँगी, जिनको आपको करना है ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है, और जैसे जैसे सेल्फ अवेयरनेस में इंक्लूड्स अगर मैं बात करूँ तो वो आपकी पहले तो आपकी ब्रेथ कंट्रोल, आपको अपने ब्रेथ पे अवेयरनेस होनी चाहिए, आपकी बॉडी अवेयरनेस होनी चाहिए. उसके बाद आपकी उस पर आपकी जो है आपके थॉट्स, बिलीव्स, आपके फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब चीज़ों पे आपको अवेयर होना है
और जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं, आप एक्चुअली हम समझ रहे होते हैं कि दूसरा बंदा जो है वो गलत है, मैं सही हूँ, तो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही लग रहा होता है। तो जैसे जैसे जब आपको अवेयरनेस आ जाती है अपने अपने थॉट्स को, अपने बारे में आप समझ जाते हो, तो फिर क्या होता है कि एक करके आप उस पर काम करते हो कि आपको पता चलता है कि वीकनेस मेरे में ही थी, ठीक है, और अब फिर उसको आप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके उसको सही करते जाते हो। जब चीज़ें क्लीन होती जाती हैं माइंड से, तो आप खुद ब खुद जो है ये चीज़ें, आप एंगर मैनेजमेंट क्या, आपके बहुत सारे जो है इशूज़ जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको इस पर, लेकिन ये एक जो है एक दिन का कुछ ऐसा नहीं कि एक रात में मेरेकल हो जाएगा। इट्स बेसिकली इट्स अ जर्नी। आपको ये वहाँ ले जाता है जहाँ आप स्पिरिचुअल पाथवे पे ले जाता है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम, रोज़ अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि हम सबके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं लेकिन अपने साथ टाइम नहीं स्पेंड करते। तो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको मैं प्रैक्टिस है वो बताना चाहूँगी कि आप जो आपको हेल्प करेगी टू कंट्रोल योर एंगर। तो पहली चीज़ तो ये कि एक्सरसाइज तो आपको रोज़ करनी है। वो क्यों करनी है? क्योंकि पहली आपकी जो एक्सरसाइज है, जो भी आपको सूट करती है आप वो करें, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका जो है आपकी एनर्जी लेवल हाई रहता है, और स्पेशली आपकी जो ऑक्सीटोसिन लेवल है, जो हमारे इज़ नोन एज ऑल्सो लव हार्मोन, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो बॉडी से कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो हमें, जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं, तो हम अच्छा फील करते हैं। जब हम अच्छा फील करते हैं और हमारी एनर्जी हाई रहती है, तो फिर क्या होता है कि नेगेटिविटी आने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी को हाई रखना है, जितना हम हाई एनर्जी रखेंगे, और दूसरा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो यू बिकम मोर, आपका जब ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज होता है तो यू बिकम मोर प्रोडक्टिव, ट्रस्टवर्दी, जेनरस, और आपके सोशल जो बिहेवियर और बाउंडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो क्योंकि आपको जो भी सूट करता है, आप एरोबिक कर सकते हो, आप योगा कर सकते हैं, आप रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते, जो भी आप स्विमिंग करें, कुछ भी करें। लेकिन आई पर्सनली आई लव योगा, तो मैं योगा को ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। तो क्योंकि योगा जो है एक होलिस्टिक अप्रोच है, जहाँ आप माइंड, बॉडी, सोल सब पे काम हो जाता है, तो आप एक बहुत काम एंड कूल पर्सन बन जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें, अगर आप बहुत सेडेंटरी जॉब है आपकी, तो आप थोड़ा ज़्यादा देखें कि जितनी आप जब बैठते हैं तो क्या होता है कि आपकी एनर्जी लो होती है, ठीक है। तो आप दिस इज नेगेटिविटी काउंट्स है, तो कोशिश ये करनी है कि मुझे जो है अपनी एनर्जी को हाई रखनी। तो एक्सरसाइज तो मुझे रोज़ करनी है, मस्त, ये नहीं, क्योंकि अगर आपको बॉडी को हेल्थी रखना है तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है। और माइंड को हेल्दी करना है, कि दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। आपका माइंड अगर हेल्थी है तो बॉडी हेल्थी है, तो उस पर असर होता है। अगर आपकी बॉडी डिस्टर्ब है तो माइंड डिस्टर्ब होगा। तो माइंड को आपको उसकी भी एक्सरसाइज करनी है। तो माइंड की एक्सरसाइज जो है वो है मेडिटेशन। आपको यू हैव टू बी माइंडफुल, यू हैव टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। तो वो उसकी क्योंकि वो हमारी हेल्प करती है टू स्टे इन प्रेजेंट। तो हम जब अवेयर रहते हैं और हमारी बेसिकली ट्रेनिंग ऑफ माइंड। तो आपको रोज़ जो इसकी सिंपल टेक्निक है वो यही है कि आप ब्रीदिंग पे आ जाओ, थोड़ा सा आप ब्रीदिंग को आप अवेयर रहें कि आपकी किस तरह से सांस अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। और जो आपकी जो मेडिटेशन है ब्रिंग्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और आप स्पेशली जब आप आंखें बंद करके करते हैं तो आप 50% एनर्जी जो है आप जो है कंजर्व कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपको पहली चीज़, अगर आपको जो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है तो अपनी एनर्जी को हाई रखना है ताकि नेगेटिविटी आए नहीं, ठीक है। दूसरा जो है आपको क्या करने के पहले, जब अगर आपको किसी पे गुस्सा आया, जैसे आपने मुझे ऐसा कि आपको गुस्सा आता है, आपके बॉस पे गुस्सा आ गया, आप पे किसी पे, आपको अपने फैमिली एनीवन, आपका लव वन हो सकते हैं, पेरेंट्स को बच्चों पे आ जाता है। तो गुस्सा जब आपको लगे कि आप मेरी आवाज़ ऊँची हो रही है, मुझे लूजिंग कंट्रोल, तो आपको पहली चीज़ जो करनी है वो आपको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना और आपको उसको एक्सप्रेस नहीं करना। क्या करना है कि उसको आपको बताना, ठीक है, एक्सप्रेस योर एंगर असर्टिवली और राइटसली, ठीक है। उस टाइम आपको लग रहा है, अक्सर होता क्या कि हम उस वक्त पी जाते हैं, उस वक्त हम दबा लेते हैं और वो गुस्सा होता ठीक पे है और निकलता किसी और पे है। और वही बात है कि उसको जब आपने अंदर रखा, आपको ये जैसे एक बलून, आपने बलून को कभी देखा, इमोशंस आप जैसे एक बलून का पानी में आप नीचे करते हो एकदम से ऊपर आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी इमोशंस भी वही इसी तरह से हैं। तो जब आप उसको क्या है कि उसको आपको जितना उसको खाली करना है, उसको आपको अंदर नहीं रखना, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप
उसको आप देखें अगले दूसरे इंसान को कि अगर उसका मूड अच्छा है उस वक्त बताएं, उसे बताएं। हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि नहीं और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, मैं इसको बताऊंगा तो छोड़ो। और हम लोग देयर आर 3 वेज ना, हम पहले अगर या तो होता है कि गुस्सा आया और पलट के मैंने भी जवाब दे दिया और फिर सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। लेकिन लोग हम में से बहुत से ऐसे करते हैं कि हम लोग उस वक्त तो चुप रह जाते हैं, लेकिन हमारा माइंड चल रहा होता है, हम बोल रहे होते नहीं ये ऐसा वैसा ऐसे कैसे कर सकते हैं, उसने ऐसे सोच भी कैसे लिया, ऐसे बोल भी कैसे लिया, ये होता कौन है, हम पता नहीं क्या, हमारा माइंड इतना फास्ट चलता है। और फिर हम कहते हैं कि वो मैं बहुत थका हुआ लग रहा हूँ, मैं एनर्जी कुछ सारी एनर्जी आपने यहाँ क्योंकि सोचने में एनर्जी आपकी बहुत जाती है, बोलने में एनर्जी लगती है, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि आपने यहाँ से तो चुप है, लेकिन यहाँ से आप सब भेज रहे हैं। तो ये आपने माइट हैव हर्ड अबाउट टेलीपैथी, तो आप माइंड से आपका वो पहले पहुंच जाती है अगले बंदे को वो बात, तो आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो आप एक्सप्रेस करें अपना, आपको एंगर, अगर आप किसी चीज़ पे गुस्सा है एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन इसको साफ पहले सुकून से इसको चुप कराएंगे, ठीक है। यू नीड टू टॉक टू योर माइंड, ठीक है, आप इससे बात करेंगे, एक्सक्यूज मी एंड सेंड अ गुड मैसेज टू द वन यू आर फीलिंग एंग्री। हाँ बिल्कुल, आप उसको आराम से मैसेज बता सकते हैं कि देखिए ये बात है, ठीक है। अगर आप सामने उसको रोज़ सब बता रहे हैं, वो नहीं समझ रहा और आपको लगता है रोज़ सीन क्रिएट हो जाता है, एक ही बात है मैं रोज़ उसको बता रही हूँ और या वो अगला बंदा मुझे रोज़ ही बता रहा है, तो सीन क्रिएट हो रहा है, तो आप उसको बताना बंद कर दें, ठीक है। आप यहाँ से मैसेज भेजें कि देखिए आप बहुत आप इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप इतने अच्छे इंसान हैं, अगर एक ये चीज़ आप भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ मुझे इरिटेट करती है, परेशान करती है, तो आप आराम से उसको बताएं, अगर सामने आप उसको बता सकते, और उसको जैसा बनाना है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। लेकिन हम यही करते रहते हैं कि नहीं वो ऐसा, ये बहुत गुस्से वाला, और फिर हम अपने तक नहीं रखते। अगर आपके बॉस आपके साथ एटीट्यूड सही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, अपने जिसके साथ बैठूँगी उसके साथ, इसने मेरे साथ ऐसे किया, ये ऐसा वो ऐसा, तो आप क्या करें और ज़्यादा उस बंदे की हैबिट को और ज़्यादा वो पक्का करें। तो आपने करना क्या, जैसा आपके पास पावर है आप उनको ब्लेसिंग करना शुरू करें, आप जैसा आप चाहते कि वो बने, आप उन्हें बोलें कि ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, कोऑपरेटिव, काइंड, मुझे मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं और मुझे जो है मैं बहुत काम एंड कूल, बहुत अच्छे से काम करती हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है। जो आपको चाहिए वो बोलें, और उनको रोज़ जब भी आपके माइंड आपको बोले कि क्या करें आप, कि ये ऐसा हो ऐसा, तो अपने माइंड को आपको चुप कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप माइंड क्योंकि आपकी बात सुनता है, आपको बताना है कि एक्सक्यूज़ मी, बी क्वाइट, ठीक है। यू उसको बताना है, माइंड से आपको बात करनी है कि आई एम द बॉस एंड यू आर माई ओबीडिएंट सर्वेंट, यू हैव टू लिसन टू मी, थिंक दिस वे नॉट दिस वे, ठीक है। उसको बताएं कि नहीं मेरे बॉस तो बहुत अच्छे हैं, बेशक है नहीं, लेकिन मैंने उनको बनाना है, तो फिर मुझे माइंड को कहना पड़ेगा, क्योंकि आप उसने बोले, क्योंकि आपका माइंड जो आपके पास एक्चुअली बहुत से हम से अनअवेयर हैं द पावर ऑफ माइंड, बेसिकली अभी ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड पोटेंशियल ऑफ माइंड। ये आपका माइंड आपके लिए सब कुछ कर सकता है, आप जो सोचें जो चाहें, बट उसको एक आर्ट है, उसको सीखना है उस नॉलेज को। तो अभी क्योंकि अब मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जब आपका माइंड हमारा बहुत डिसेप्टिव होता है, उस बंदा जिसके से गुस्सा होता है, हमें गुस्सा आ रहा होता है, वो सारी वो पिछले सीन भी ला के सामने कर देता है, जैसा वो उस वक्त भी ये किया था, उससे भी किया था, हम और अग्रेसिव गुस्सा और आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आपने जब ऐसा हो तो आपने इसको चुप कराना, एक्सक्यूज़ मी, बस सही है ना, पता है मुझे, मैं बता रही हूँ ना कि वो बहुत अच्छा है, आई एम द बॉस एंड यू हैव टू लिसन टू मी। तो इस तरह से आपको अपने माइंड को जो है वो खामोश करा। आई एम प्रैक्टिसिंग दिस सीरियसली, आई एम प्रैक्टिसिंग दिस एंड मैं बहुत, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत एग्रेसिव रह चुकी हूँ एक टाइम में, और मैं जिस फील्ड में थी और अभी भी हूँ, आई एम यूजिंग दैट एनर्जी टू complete my tasks now instead of being angry over myself, because पहले तो अपने आप को नुकसान पहुँचाया। और इससे होता ये कि एंगर से जो द रीज़न आई वांटेड टू हैव दिस सेशन, क्योंकि मैं उस जोन में रह चुकी हुई हूँ, और उससे जब मुझे लोग बताते थे तो मेरी एनर्जी ऐसी थी कि मैं मुझे बस वही करना होता था, द वे आई वांटेड टू डू इट, बट द वे शी सेड, लर्न टू रिस्पॉन्ड
not to react. Yeah. So I started doing that, but sometimes I'm not saying I am, you know, I'm a very perfect person. I do sometimes react even in my house with my siblings and my नहीं होता है, इट्स नेचुरल. बट देखो, ये एज आई सेड अर्लियर कि देखो होगा, गुस्सा तो आएगा, लेकिन देखो आप से एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको एक्नॉलेज करना है कि चीज़ आती है, ठीक है, है मेरे साथ प्रॉब्लम, तो मुझे आई नीड टू वर्क ऑन इट, ठीक है, लेकिन इसको बढ़ने नहीं देना, ठीक है. ये आप वही मैंने जैसे कहा है कि एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, इट्स अ जर्नी. आपको रोज़ रोज़ अपने ऊपर काम करना है. यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ. और जैसे जब गुस्सा आता है तो आपको खुद से बात करें, यू हैव टू काउंसिल योर सेल्फ. जब उसी टाइम जैसे आप लास्ट सीन कोई याद करो, जैसे आपका कोई फ्रेंड को गुस्सा, किसी को गुस्सा है, आपने उसको पैसिफाई किया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको समझाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ ना, कुछ रिलैक्स सही हो जाएगा सब, चलो सोल्यूशंस पे आते हैं. तो हम इसी तरह से हमें खुद से बात करनी है. वी हैव टू काउंसिल योर सेल्फ. अपने से बात करनी है कि नहीं कोई नहीं, अपना नाम लेके कि नहीं देखो सच ओके हो जाता है ना. किसी ने अगर कुछ कह दिया तो आपको, अब उसने रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पर्सनालिटी, ठीक है, वो मेरे बारे में नहीं था, आप उसको माफ़ करें कि ओके आई ओके, मुझे पता है शायद कोई मसला होगा, वो परेशान होगा, उसको इसलिए उसने ऐसे कह दिया, तो आप उसके लिए इवन आप उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं कि आप वो जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व हो जाए, ठीक है. और बहुत ज़रूरी है उसको, क्योंकि उस टाइम पे आप उसको उसी टाइम लेस भी कर सकते हैं जैसे आपको बनाना है. ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको छोड़ देते हैं कि नहीं मैं तो जहाँ जॉब ही नहीं करनी है, मैं तो आपको बीइंग HR प्रोफेशनल में आपको ये बात बताना चाहूँगी कि जो मेजॉरिटी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो टर्नओवर की जो सबसे ज़्यादा टर्नओवर होता है, उसकी जो एक कॉज है वो ये इंडिविजुअल डेफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस. हमें जब लोग आते हैं तो लोगों को कई बॉस के एटीट्यूड से प्रॉब्लम, को वर्कर के एटीट्यूड से प्रॉब्लम, तो हम एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो जो बंदा, इफ़ यू आर अ गुड मैनेजर ऑफ योर इमोशंस, then you will become productive, you will have good relationships, and ultimately you will have good health and success. So ये चीज़ इसलिए we have to be good manager of our emotions. ये सीखना है. जैसे मैंने पहले बताया, आपको बैठना है अपने साथ. अगर आपको कोई जिस पे गुस्सा आ रहा है तो आप ये उस सिचुएशन से भागे नहीं, थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठें और अपने अंदर जो केमिकल रिएक्शन है अपने अंदर बैठ के देखें कि क्या मेरे में मैं क्या फीलिंग चेंज हो रही है, थॉट्स चेंज हो रही है, क्या मेरे अंदर क्या हो रहा है. तो बहुत काइंड एंड नॉन जजमेंटल वे में आप अपने आप को जो है अवेयर रहें. और वो अवेयरनेस जो है, जैसे आप अवेयर होते जाएंगे, आप वो चीज़ें सही करते जाएंगे और आप जो है खुद ही इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे, आप काम एंड पीसफुल रहेंगे. अच्छा, देखिए लोग एक तो ये 3-4 पॉइंटर्स हैं, इसको आई वांट यू टू रिपीट, लाइक दोबारा रिपीट कर दें ताकि उसके पॉइंटर्स बन जाए. पहले आपने क्या बताया था? पहले आपको देखिए, पहले अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे, किसी ने आपको इसको क्रिटिसाइज़ किया, इंसल्ट कर दिया है कुछ भी, तो पहली चीज़ आपको खुद से बात करनी. काउंसिल योरसेल्फ, खुद से बात करें और कहें कि ठीक है, इट्स ओके. जैसे मैंने बात की, अपने आप को समझाएं, पैसिफाई करें कि हम कोई बात नहीं, उसने बोला वो आपके बारे में नहीं बोला, लेकिन आप जब आप अपने आप को जानेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस पे, आपका सेल्फ नॉलेज भी, आपको पता है कि आप कौन हैं, आप सही हैं, लेकिन वो बंदा भी गुस्से में है, ठीक है. तो अपने आप को समझाएं, पैसिफाई करें. और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप उससे बाद में बात करें, जब उसके मूड देख के बताएं. अगर वो उस वक्त भी नहीं समझ रहा तो फिर आपको यहाँ से उसको बताना है और उसको जो हम आप करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, ठीक है, या आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, तो आप जो है आप बोलें कि नहीं, काम को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, एंड वेरी काइंड पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, कोऑपरेटिव पर्सन. और अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं, तो मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने बहुत टफ जो है इंटरेस्टेड बॉसेस के साथ काम किया. और जब मैं जाती थी बॉस से, मैं रूम पे जाती थी अपना काम दिखाने, तो मैं हमेशा ये टेक्निक यूज़ करके जाती थी और मेरा उनके साथ बाद में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना. और मैं जॉब मैंने छोड़ी नहीं, लेकिन मैंने बहुत इंजॉय करके काम किया, लेकिन ये सारी टेक्निक्स यूज़ करती थी. तो मैं क्या
करती थी कि पहले मैं विजुअलाइज करके जाती थी कि नहीं मैं रूम में गई, इसे हम मेंटल रिहर्सल बोलते हैं। अगर कोई सीन रोज़ रोज़ आता है, आपको उस चीज़ से रोज़ रोज़ गुस्सा आता है, ठीक है, तो आप उस पूरे सीन को जो है आपका माइंड जो रात में और दिन में बहुत रिसेप्टिव होता है क्योंकि रिलैक्स होता है, तो आप वो चीज़ जहाँ डालते हैं वो चीज़ आपको पर रेपिटेशन, ये नहीं आप समझो कि एक दिन किया और आप वो काम हो जाएगा। रोज़ 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 आप उस सीन को विजुलाइज करें। मैं देखती थी कि मैं चाहती हूँ मेरा काम जो है उनको पसंद आता है, मैं बहुत खुशी खुशी रूम में जाती हूँ और बहुत खुशी से बाहर आती हूँ, और मैं उनको रोज़ ब्लेसिंग देती थी कि इज़ अ वेरी काइंड, पीसफुल, cheerful person and he likes my work, he always appreciates me और encourages me। जो भी आप चाह रहे हैं कि नहीं हो रहा उसको कहना शुरू करें और वो देखना विजुलाइज करना शुरू करें। एंड इट्स अ मैजिक फार्मूला given by Dr. Vincent Norman Peale, one of my favorite authors। तो इसको एंड दिस मैजिक फार्मूला नेवर फेल्स। आप पहले उस बंदे के लिए प्रेयर करें और जो आपने उसको प्रेयर में किया उसके बाद उसको आप विजुअलाइज करना शुरू करें, और जब आप उसको साथ रिपीटेडली बोलते रहते हैं, जब आपका माइंड आपको, मैंने आपको बोला आपको यू नीड टू टॉक टू योर माइंड दैन, ठीक है, माइंड आपका बोलेगा नहीं नहीं ये तो है ही नहीं ऐसा, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, वो सारे सीन लाएगा, फिर आपको माइंड को दोबारा उसको चुप करवाना कि नहीं ऐसा नहीं है, देखो तुम्हें मेरी सुनना है, ठीक है, यू आर माई ओबीडिएंट सर्वेंट, आई एम द बॉस, ठीक है, तो मेरे बॉस जो है वो बहुत अच्छे हैं। ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके कोई भी, अगर आपके स्पाउस के साथ कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चे आपके नहीं सुन रहे, आप एनी वन आप ये जो है अप्लाई करें और आप देखें कि रियली आपके पास एक्चुअली हमें अपनी पावर का पता नहीं है, हम लोग बस समझते हैं अर्न करना कुछ नहीं। जैसे आप इसी तरह से समझ लो कि आई वॉन्ट टू लूज वेट, ठीक है, एंड आई एम वेरी लेजी टू एक्सरसाइज एंड I don't want to change my lifestyle. So do you think you will be able to lose weight? So यही है कि अगर आपको एंगर को कंट्रोल करना है, you have to take action. Action is the key. So अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि लोग बड़े स्मार्ट हैं, सबको पता होता है, हाँ, ज़्यादातर जिनके साथ हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं सबको उनकी नेचर का अंदाज़ा होता है। हाँ, सबको पता है कि इनका ट्रिगर पॉइंट क्या है, what makes him or her, you know, uncomfortable or angry. So what do you suggest those who, you know, एकदम से ट्रिगर्ड हो जाते हैं, उनको ब्रीदिंग करनी चाहिए और उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि, क्योंकि अक्सर लोगों को पता होता है कि उन्हें ये जानकर हो रहा है, कुछ लोग जानकर, you know, such things are everywhere, such people are everywhere. So how do you tell people कि जो ट्रिगर एकदम से हो जाते हैं उनको ब्रीदिंग करनी चाहिए या उनको उस पूरे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना चाहिए एंड देन रिएक्ट? दूसरा मेरा पॉइंट ये है, पीपल हु न्यू कि इनको गुस्सा आया हुआ है उनको आपके मैसेज देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि किसी को गुस्सा आया होता है तो वो और उनके पास जा रहे होते हैं कि हाँ भाई वो गुस्से में आप उनको थोड़ा छोड़ दें, just leave that person alone for a while. So ये मुझे बताइएगा कि उनको क्या करना चाहिए अक्सर, क्योंकि हमें ही डर होता है, you know, it's a lag that comes in कि you know उनको गुस्सा आगे नाराज जाएंगे, नाराज हो जाएंगे and stuff like that. रिलेशनशिप्स में होता है, पेरेंट्स के साथ होता है, तो मुझे गुस्सा आता है, मेरी अम्मा मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है। हाँ, सही कर रही है। हाँ, छोड़ना तो है, लेकिन छोड़ने के साथ साथ वही बात है कि आपको ब्लेस करना है, आपको यहाँ से उनको एम्पावर करना है। एक्चुअली वो उसका वीक है तो गुस्सा हो रहा है, इंसान इंटरनली वीक होता है तो वो फिर गुस्सा होता है, तो आप क्या करें कि थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ें, लेकिन थोड़ा सा हट के आप उनको ब्लेस करें, आप उनको कहें कि ही और शी इज़ वेरी पीसफुल एंड cheerful person, ठीक है, इज़ वेरी काम एंड कूल और हाँ, तो आप बस उनको ब्लेस जैसा करना, आप चुप करके और बोलते रहें। आप जैसे हम दुआ देते हैं, ब्लेस करते हैं, आप उनको कहेंगे नहीं बहुत अच्छे, बहुत पुरसकून रहता है, बहुत पुरअमन है, बहुत पीसफुल, जॉयफुल, जो भी आपने उनको कहना है, लेकिन उसको ये ना कह जो कि अजीब इंसान है, हाँ, समझा के हम लोग ये कह रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया, पता नहीं कभी इसने ये तो सुधरने वाला। अक्सर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं इसने तो ये कुछ भी कर लो ये तो बदलने वाला है, ये सुधरने वाला नहीं है, समझा दे के देख लिया, तो हमने ऐसे नहीं, ये वाली लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, हमने चुप करके थोड़ी देर उनको रिलैक्स करने दें, छोड़ दें और उनको उनके लिए वो बोलें। और दूसरा आपने क्या बोला था, थोड़ा सा मैं हाँ, दूसरा मैंने कहा था कि जिनको पता है कि वो एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे मुझे पता है ट्रिगर हो जाती हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं ट्रिगर होती हूँ तो आई जस्ट डोंट रिएक्ट, आई हैव माय ओन
aura and I just stay in that. Hmm. Sometimes I only, because उसको कहते हैं being vulnerable. You can be vulnerable with the people you trust. You can be vulnerable with the people you trust. Don't be vulnerable because it's like you're showing out yourself to the public. Don't you be, and don't be a gossip for the marketplace if you guys are working. So be vulnerable, and it's good to be vulnerable. It's okay to be vulnerable. It's okay. सबको पता होना चाहिए जो आपके हाँ, करीब हैं कि आप किस किस्म के हैं, क्योंकि इससे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है. I hope I'm saying that हाँ, you're saying right. लेकिन देखिए जो भी है आपको जैसे अभी आपने गॉसिप बोला ना, शॉप वर्क प्लेस पे या फैमिलीज पे, तो वी वेस्ट लॉट ऑफ एनर्जी. तो वही बात है, जितनी आप एनर्जी को, मैंने पहले कहा कि कीप योर एनर्जी हाई. जितना आपकी एनर्जी हाई होगी तो नेगेटिविटी आएगी नहीं. तो अपनी एनर्जी को कंजर्व करने पे ध्यान देना है. तो गॉसिप भी उनमें से एक है, थोड़ा सा गॉसिप से बिल्कुल हटना है. अपने आप को अपने बहुत सोच समझ के लोगों, आपका फ्रेंड सर्कल, आप किन के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो. अगर आपको पहले ही पता, आप तो बहुत जल्दी ट्रिगर हो रहे हो. ठीक है. मैंने जैसे पहले कहा, ये इसका इट्स अ काइंड ऑफ इमोशनल इलनेस. आप खुद ही वीक हो और आप जाके ऐसे लोगों के साथ, बीमार लोगों के साथ बैठ के, तो फिर आप और बीमार हो गए ना. तो फिर आपने पहले ये ध्यान रखना कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्से वाले लोगों में और बैठ रही हूँ. ठीक है ना. तो पहले मुझे अपने आप पे काम करना है. तो आप रोज़ जो है आपको एक्सरसाइज तो करनी है, ब्रीदिंग करनी है, मेडिटेशन थोड़ी देर के लिए आप ब्रीदिंग करें और खामोशी से सिट इन साइलेंस. देखिए सोचें आएंगी जाएंगी. ठीक है. और आपने उसको पकड़ना नहीं है. ठीक है. आपने बिल्कुल ऐसे जैसे होता है कि आप बर्ड्स आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो, या बटरफ्लाइज को देख रहे होते हो, या क्लाउड्स को आप देख रहे हैं, आप पकड़ते तो नहीं है ना. तो आप उनसे अटैच नहीं हो, बस देखो. ऐसी सोचें आएंगी जाएंगी. आपने उनको नहीं छेड़ना, चुप करके बैठे रहें. सिर्फ ऑब्जर्व करें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ, ठीक है, मुझे कहाँ इसको चेंज करना है. ये भी एक आर्ट है, थिंकिंग ऑफ आर्ट ऑफ थिंकिंग राइट. देखिए इसके ये भी स्किल है जिसको सीखना है. लेकिन वही बात है, मुझे खुशी है कि आप लोग जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, अगर आप वाकई पर्सनल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप बहुत सारी स्किल्स जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आप खुद अपने अंदर जो है चेंज देखेंगे. और जब आप में चेंज आएगी वो खुद ब खुद दिख रही होगी. आप और अभी सोसाइटी में जो बेस्ट गिफ्ट जो हम किसी को दे सकते हैं वो यही है कि आप खुद से बेहतरीन इंसान बने. तो आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें. आप किसी के साथ सिर्फ बैठेंगे ही तो वो हील हो रहा होगा, उसको अच्छा लग रहा होगा. तो उस पर काम करें कि आप एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आपको मेडिटेशन रोज़ करना है. और आपको फीलिंग्स को लिख लें, जर्नलिंग करें. अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे हर्ट किया है, इस चीज़ ने गुस्सा दिया है, जो भी, उसको लिखें. तो आप जब उसको बैठ के रिलैक्स होकर पढ़ेंगे तो जब यू विल टू चेंज है. तो आपको सिर्फ थॉट्स चेंज करनी है और खुद ही आपके लाइफ में चेंज आ जाएगा. अच्छा, दूसरा मुझे जो बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी वो ये कि एंगर से कितनी बीमारियां जुड़ी हुई हैं. जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कितनी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, आप उस चीज़ को खाएंगे नहीं. ये चीज़ खराब है, हम उसको नहीं खाना चाहेंगे बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. सो व्हेन वी अंडरस्टैंड कि वो बीमारी जो है कि एक तरीके से एंगर भी डिजीज़ ही है. हाँ, बिल्कुल डिजीज़ है. सो अब अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि उसमें कितनी बीमारियां, तो मैं साइमन से सुनना चाहूँगी कि वो किस हद तक आपके ब्रेन को डैमेज करती है, आपका इंटरनल पीस ख़राब करती है, आपकी बोन्स में भी इफेक्ट करती है ना. हाँ, सारी आपको देखिए ओवरऑल आपकी मेंटल और फिजिकल इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब होती है. आपने यू माइट हैव हर्ड कि होल्डिंग ऑन टू एंगर इज जस्ट लाइक होल्डिंग ऑन टू कोल. आपने अपने हाथ में कोयला पकड़ा, देख के किसका नुकसान होगा, अपना ही ना. तो बिल्कुल ऐसे ही अगर नुकसान किसी का उतना नहीं हो रहा, मेरा अपना ही नुकसान हो रहा है. और कैसे हो रहा है, यू माइट हैव नोटिस के जिनको बहुत गुस्सा आता है ना, उनको उनके स्टमक प्रॉब्लम हमेशा रहते हैं, एसिडिटी हो जाती है, ब्लड प्रेशर आ गया, फिर हार्ट प्रॉब्लम्स होगी. और जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स आती हैं वो साथ अपने कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है साथ लेके आते हैं. और अब तो रिसर्च भी बताती है कि जो जितनी भी 90% जो एलिमेंट्स हैं जो हैं वो साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स हैं, यानी कि हमारा माइंड जो है वो हमें डिस्टर्ब बीमार कर रहा है. तो हमें भी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर माइंड. इसलिए मैंने बोला है कि माइंड को भी रोज़ एक्सरसाइज चाहिए. एक्चुअली हम वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा फोकस जो होता है हमारी मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. तो यहाँ मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, लेकिन जितना आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो विद एडवांसमेंट ऑफ विद एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, हर चीज़ वी कैन गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. तो आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, लेकिन जब तक आप उसको लर्निंग को अप्लाई नहीं करेंगे यू वोंट गेट रिजल्ट्स.
सो आप अभी तो वी आर ब्लेसेड, मैं कहूँगी कि आपको इतनी एक क्लिक पे आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन ये है कि कुछ करेंगे तो सो साइमा इससे स्पेसिफिक में अगर कुछ डिजीज़ के नाम लूँ, जैसे कि शुगर, डायबिटीज, सब स्ट्रेस, स्ट्रेस सब लिवर इश्यूज हो जाते हैं आपको, स्टमक आपका, योर माइंड इज कनेक्टेड विद योर स्टमक, डिप्रेशन में चले जाते हैं समटाइम्स, लोगों को पता भी नहीं होता डिप्रेशन में होते हैं। उसके बाद ट्रॉमा क्रिएट कर रहा होता है वो आपका बैक ऑफ द माइंड, एंड देन वन ऑफ द वेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजीज विच इज इंटरनल डिजीज जिसे कहते हैं हेट्रेड पैदा होती है, और वो आपको क्या, वो दूसरे की लाइफ के लिए भी वो इतनी ही खतरनाक होती है, बिकॉज यू आर कीप ऑन हैविंग दैट envy in your heart that this person is that, this person is that. So these are very dangerous and important steps. एक तो बहुत ही dangerous बीमारी है, और दूसरे important steps ये हैं कि just to eliminate such things, just to eliminate your your groundings, your environment, कि भाई हमने ऐसे environment में नहीं जाना, आपको पता है कहीं इस किस्म की बात की जा रही है या कोई किसी के साथ envy है या जो भी है. So what do you say about it? Like, देखिए मनीषा, ये सारे जो इमोशंस हैं ना, जो मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके अंदर एनवी है, हेट्रेड है, एंगर है, जेलसी है, तो ये किसी का नुकसान ही कर रहा है, आपका अपना खुद का नुकसान है. जितनी आपने इलनेस बोली, मैंने जब स्टडी किया तो मेरे पास मैंने वो बुक मेरे पास है जिसमें मैं आप सिर्फ आप बीमारी बताऊँगी, उसमें मैं सारी इमोशनल डिसऑर्डर का बताऊँगी कि आप ये चीज़ें हैं आप जिसकी वजह से शुगर है, आप सिर्फ अपने थॉट्स को चेंज करें, आप व्हेन योर थॉट्स आर हील्ड तो आपकी बीमारी खुद हील हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें हमारी जब अंदर रहेंगी तो ये इसको हमें प्योरीफाई करना अपने आप को. वही बात है, जब तक आप काम ही नहीं करोगे, आप समझते हैं नेचुरल ठीक है जी, मुझे इस पर बहुत गुस्सा है, मुझे नफरत हो रही है, मुझे हेट्रेड है, ये जेलसी फील कर रहा हूँ, ये नॉर्मल है. लेकिन नॉर्मल नहीं है इसी चीज़, वही चीज़ जब जितनी देर वो आपके अंदर रहेगी, थोड़े अरसे बाद एक बड़ी बीमारी आएगी. इवन कैंसर तक की सारी चीज़ें जो आप ये इमोशंस अंदर रखते हैं, ये सब इसीलिए. तो इसलिए थोड़ा सा इस पर भी ध्यान करना है. हम जब हीलिंग पे आते हैं तो हम इन सारी चीज़ों को चेक करते हैं कि अगर एक रिकरिंग प्रॉब्लम है, बार बार बीमार हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, तो हम इस एरिया को भी चेक करें कि इस एरिया में आपका थॉट प्रोसेस क्या है, तो आप किस तरह तो उस पर भी काम करते हैं, तो फिर वो खुद ब खुद आप फीलिंग की तरफ आ जाए. When do you think that professional help is needed? देखो, जब प्रोफेशनल हेल्प उस वक्त है जब आपको लगे कि आपके कंट्रोल से ये चीज़ें बाहर हो रही हैं. जैसे मैंने शुरू में बोला, बहुत अग्रेशन आ गया है. आप अभी आपने सोसाइटी में देखा कितना अग्रेशन है, लोग इवन मर्डर तक कर देते हैं लोग. जब आपको लगे, इवन माँ एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आप पेरेंट आपकी आवाज़ ऊंची हो रही है और आप बाद में आपको दुख होता है कि वो मैंने ये क्या कर दिया. समटाइम्स हम कुछ ऐसा कर देते हैं, बोल देते हैं, बाद में मुझे बिल्कुल ऐसा हो जाओ, फिर बाद में मुझे अफसोस भी होता है कि मैंने क्या कर दिया. तो अगर मुझे ये चीज़ हो रही है और कुछ हद से ज़्यादा मुझे इतना आ रहा है कि मेरा मतलब मैं किसी से मैं चीज़ें फेंकना शुरू हो गया हूँ. अक्सर होता है ना, माइट नोटिस मुझे गुस्सा आता है, दे स्टार्ट थ्रोइंग थिंग्स, और इवन वो वर्बली वायलेंट हो जाता है, वर्बली अब्यूसिव हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है. जब लगे कि हद से ज़्यादा हो रहा है तो मुझे अब तो देखिए, वही जैसे मैंने पहले कहा कि अब मैं अपने केस में जब मैं बहुत अग्रेसिव होती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था, तो जो है ऐसे हम बिब्लियोथेरेपी कहते हैं. जैसे मैंने अभी बोला कि आप नेट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत से सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जिन्हें आप पढ़ के आप लर्निंग को अप्लाई करते हो, आप बदल सकते हो, चेंज हो जाते हैं. आपके पास मेंटर्स हैं, आपके पास ट्रेनर्स हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो. लेकिन अगर आपको लगता है इससे ज़्यादा है तो आप साइकोलॉजिस्ट फिर आप जाएँ, आप ज़रूर जो है प्रोफेशनल हेल्प लें. कि अगर आपको वो चीज़ें हद से ज़्यादा, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, आपकी अपनी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, तो यू मस्ट टेक प्रोफेशनल. So thank you so much Saima, and I'm coming to the audience के आगे कोई questions आए हैं, मैं वो पढ़ लेती हूँ. Thank you so much you guys joining and listening. Walaikum salam. Okay, so
एक ही आया फिलहाल। मुझे पता है बाकी आएंगे, क्योंकि कोई भी जिसने भी मुझे कहा था, एक तो एंगर मैनेजमेंट पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मुझे कहा था, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो आई एम ट्राइंग टू हैव रिकरिंग सेशंस विद साइमा, एंड मंडे वी आर गोइंग टू हैव अ स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर एक सेशन विद one more professional psychologist. So one question that I got is, in anger we don't know what actually we are doing, and the reason is that we end up hurting our own selves. What shall be done? देखिए, ये भी मैंने वही बताया कि एंगर में आपको जब पता ही नहीं होता ना कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि वो उस वक्त आपको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता, ठीक है, तो आप अपनी पावर लूज कर जाते हो। तो इसीलिए जब आप अपने आप पे रोज़ रोज़ काम करेंगे, आप रोज़ अपने आप की एनर्जी को हाई रखेंगे, आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ आपको करना क्या है, देखिए आप अगर गुस्सा आता है तो आप रोज़ सुबह उठ के या रात में सोने से पहले आपको थोड़ी सी अपने माइंड को रिलैक्स करना है, ठीक है, पहले अपने आपको काम एंड पीसफुल इंसान बनाना है, ठीक है, तो ये चीज़ आएगी नहीं, ठीक है, तो रोज़ अपने आप को बोलें, क्योंकि आप जो रिपीट करते हैं आपका माइंड आपको वैसे बनाना शुरू हो जाता है। तो आप रोज़ सुबह उठें और उठ के थोड़ा अपने आप को माइंड को रिलैक्स करें, पानी का गिलास पिएँ, और फिर आप जो थोड़ी सी ब्रीदिंग करें, ठीक है, और 3-4-5-7 लंबे गहरे सांस लें, और फिर अपने आप को एक एफर्मेशन बोलें कि आई एम पीसफुल एंड चीयरफुल पर्सन, राइट, और इसको बोलें, और फिर अपने आप को विजुअलाइज करें। सारा दिन आप अपना जो जिसके साथ आप जो है टाइम अपना गुजारते हैं, जहाँ जो काम करते हैं, या कोई ऐसा सिचुएशन है या कोई पर्सन है जिससे आप देख के गुस्सा आता है, तो अपने आप को विजुअलाइज करें कि नहीं, मैं बिल्कुल पीसफुल हूँ और चेयरफुल हूँ, बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, और एक माइंड में एक पिक्चर अपनी है। और आपको ये नहीं कि एक बार बोल के मैंने सुबह बोल लिया कि आई एम वेरी पीसफुल एंड चेयरफुल पर्सन और हो गया काम, नहीं, आपको इतना रिपीट करना है, और स्पेशली पानी पीते वक्त, खाना खाते वक्त आप बोलें, क्योंकि उस वक्त आपको और ज़्यादा आपकी माइंड खाना सिर्फ जो है वो पेट का नहीं होता, वो आपके माइंड से कनेक्ट होता है, आपकी थॉट बनती है, उस टाइम वो जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आपको सारा दिन चलते फिरते कहीं भी आप मार्केट जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे आपको याद है, आप तो 2-3 लंबे गहरे सांस लें और अपने आप को बोले कि नहीं, आई एम पीसफुल एंड चीयरफुल पर्सन। और जितना आप करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आप खुद आप में चेंजेस आप भी देखेंगे, और आपके इर्द गिर्द लोग खुद जो है इसको नोटिस करेंगे। So that's all, I guess. We don't have any other questions right now. Thank you, Vanessa and Miss Aima. Thank you so much, Ahmed, for joining, and do share this session with the people. इसके लिए मैं जो एक कंक्लूजन देना चाहूँगी, जो मैंने आइडेंटिफाई किया था अपने लिए ड्यूरिंग कोविड। सो उसमें ये था कि आई स्टार्टेड हैविंग माई ओन मॉर्निंग रिचुअल। मैं अपना टाइम लेती हूँ टू गेट रेडी, टू हैव माई आपकी कॉफ़ी होती होगी, मेरी चाय बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हैव माई चाय, टू गेट रेडी, and how I feel within myself, that is more important, because that is what I'm going to give it to the people. It's like if I'm going to speak a good thing with somebody, that person will be ignite with the good energy. If I say something bad with somebody or to someone, वो उतना ही बुरा फील करेगा जितना मैं, और उससे ज़्यादा मैं बुरा फील करी हूँ, वो हम एनालाइज नहीं करते, एनालिसिस हमारा नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज़, हैव योर मॉर्निंग रिचुअल्स, ब्रीदिंग, एक्सरसाइज 1 घंटा आपने या 2 घंटा आप जल्दी भी उठ जाए, अगर उठ जाए तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी हैबिट है कि आप जल्दी सोएं, जल्दी उठें। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे, जितना टाइम है आपके पास, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स हैं, वो अपने आप को दीजिए। आप उसमें हर सब कुछ हो सकता है, लेकिन बस ये नहीं कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जब आप बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है तो कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको कहना है कि आई हैव एम्पल टाइम टू डू द थिंग्स दैट रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो खुद ब खुद टाइम आए। और फिर एक और है विच इज़ मेडिटेशन। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सक रहे, इट्स ओके, वर्कआउट आप ऑफिस के बाद आके कर ले, इट्स ओके, बट एटलीस्ट आप मेडिटेट करके जाएं, क्योंकि आप माइंडफुल हो जाएंगे। एंड अच्छा, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ लोगों को ये नहीं पता मेडिटेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है, मेडिटेशन होती क्या है, मेडिटेट कैसे करना है, क्योंकि अक्सर ये यहाँ के माशरे में ऑनेस्टली बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस ज़्यादातर मैं इंडिया में देख रही होती हूँ, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद योगा, आसन्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड सेशंस ऐसे होते हैं वर्कआउट पे, जाहिर है ज़्यादा रुझान है। आई ऑल्सो बिलीव इन वर्कआउट, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट
if a person doesn't know how to start with, how to begin with, Hmm. what do you suggest with them? देखिए पहली चीज़ जो है, देखिए वही लोग जैसे आपने कहा कि इसको जोड़ दिया जाता है बुद्धिज़्म से या इंडिया में ये ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। ये देखिए हर इसको सिंपल एक प्रैक्टिस है जो कि हर रिलीजन में है। आपको जस्ट यू हैव टू पे अटेंशन, यू हैव टू रिफ्लेक्ट। ठीक है, आपने यू माइट डिफरेंट नेम्स हैं, आप इसको माइंडफुलनेस बोल लो, आप इसको सेंटरिंग प्रेयर बोल लो, आप इसको मेडिटेशन बोल लो, बट मकसद ये है कि इट हेल्प्स अस टू स्टे इन प्रेजेंट। ठीक है, और प्रेजेंट में आप जो सिंपल प्रैक्टिस है, आपको सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करना, हमें अवेयर रहना है। तो जब हम ब्रीदिंग पे आते हैं तो क्या होता है, हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमें टाइम मिल जाता है, हम अपने जो इन्वायरमेंट से डिस्कनेक्ट होते हैं, तो फिर हम खुद के साथ एक्चुअली हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, खुद को जानना शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो आप अपने ब्रेथ पे कंट्रोल लेके आते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने पॉस्चर पे ध्यान रखें। ठीक है, अब ब्रीदिंग भी सिंपल जो आपने ब्रीदिंग का कहा है मेडिटेशन में, आप सिंपल ब्रीदिंग करें, आप इनहेल एक्सहेल, ठीक है, आप करें और पूरा फोकस देखें किस तरह सांस ऊपर आ रहा है और किस तरह से जा रहा है, बड़ा ध्यान माने। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप खामोशी में बैठ जाएं, जैसे मैंने पहले कहा, आपके थॉट्स आएंगे जाएंगे, आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें कि पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ठीक है, और अगर नेगेटिव हैं तो उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो अब आपकी थॉट्स जो हैं, आपके थॉट्स एंड वर्ड्स जो हैं वो दे हैव क्रिएटिव पावर। तो फिर आपको जो है उसको आपको ध्यान रखना है। आप थोड़ी देर के लिए बस ये आपकी सिंपल प्रैक्टिस, वैसे तो देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो आपने जैसे कहा जस्ट टू बिगिन विद, तो आप सिर्फ जो है पहली आप ये प्रैक्टिस करें, ब्रीदिंग पे आए। ठीक है, 5-7 जो है 5 टाइम्स, फिर आप 10 टाइम्स ब्रीदिंग करें, फिर आप 20 तक लेके आए। ठीक है, और इसमें आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है आप, लेकिन जब आप एनर्जी को फील हो जाती है इस टाइम करेंगे और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, दिन में करते हैं। और दूसरा, जैसे मनीषा ने कहा, उसको भी मैं ये भी एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है कि आप जैसे आप सुबह चाय का कप लेते हो या कॉफ़ी पी रहे हो, जो पिए, या क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो माइंडफुल ईटिंग बोलते हैं हम इसे, तो पूरा आपने वहाँ ध्यान देना है कि आप उसको टेस्ट को स्मेल करें, उसको ऑब्जर्व करें कैसा दिख रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे अंदर जाए पूरा, यानी कि उसको उस टाइम में हम कर क्या रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, लेकिन एक जल्दी में खा रहे होते हैं और सोच रहे हैं अब मैंने ये करना है, ये भी करना है, उधर जाना है, उससे मिलना है, तो हम सुकून से खा नहीं रहे होते हैं। तो आपकी जब आप माइंडफुल ईटिंग भी होती है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप में खुद ही अवेयरनेस आपकी जो है अपने बारे में, जैसे मैंने शुरू में कहा, एंगर मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली इट्स अ थॉट मैनेजमेंट है, और इसमें सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ की। ठीक है, तो उस सेल्फ अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनमें ये भी है कि आपको खुद पे अपनी पहले बॉडी को, अपनी पॉस्चर को भी आप चेक करें। इस पर अपने चाहे आप कंप्यूटर पे आप बैठे काम कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं, तो आपका पॉस्चर जो है वो करेक्ट होना चाहिए। अवेयर रहें कि मेरा पॉस्चर, बॉडी से अवेयर रहना है, पॉस्चर से अवेयर रहना है, आपको अपनी ब्रेथ से अवेयर रहना है, आपको खाने पे जो है वहाँ फोकस करना है। तो ये प्रैक्टिस है, जब मैंने वन थिंग एट अ टाइम, आपको ये शुरू में लगेगा ये क्या मैं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आपको खुद पे कंट्रोल आता जाएगा, आप अपने बारे में चीज़ों में अवेयर होते जाएंगे, तो फिर थॉट्स और बिलीव्स और इमोशंस पे भी आप अवेयरनेस आती जाएगी, तो ये खुद ब खुद चीज़ें आपकी बहुत सारी जो इश्यूज हो जाएंगे, एंड यू विल बी हैप्पी एंड हेल्थी। अच्छा, second last question, last भी है एक, second last question is how much water intake we should take to give an oxygen to our brain? वाटर, हाँ जो कि देखिए जितना मैं देखिए पानी जो है इस पर तो पूरा प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन आप वही मैंने बोला कि देखिए पानी, आप जितना आप पानी पीएंगे, पानी सिर्फ ऐसे ही नहीं पीना। देखिए वही अगर आप इस पे जाएँ, वो यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं, एक जो है पानी पे बहुत सारी रिसर्च हुई है कि वाटर हैज़ मेमोरी, पानी हमारी बातें सुनता है। ठीक है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। ठीक है, जापानीज साइंटिस्ट हैं वो, तो हज़ारों, आप उनको आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो पानी जो है ऐसे नहीं पीना, जैसे मैंने शुरू में कहा, आप पानी को ब्लेस करके आप खुदा का शुक्र करके पिए कि थैंक गॉड फॉर द क्लीन वाटर, और इसको आप जो इस पर ब्लेसिंग जो भी आपको, जैसे मैंने भी कहा, आप अपने आप को बोलें कि हाँ आई एम पीसफुल एंड चीयरफुल पर्सन, जो आपको बनाना है अपने आप को, या किसी को भी देना है तो आप उसको भी दे रहे हैं, तो उसको भी ब्लेस करके उसको पानी दें, तो आप उससे जो है चेंज कर सकते हैं अपने आप को भी, दूसरों को भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन पानी वैसे ही हमारे अंदर, क्योंकि देखिए 72% हमारी बॉडी का जो है वो हिस्सा है, और इसी तरह से जो
है आप जितना पानी पिएंगे और आप वैसे भी फ्रेश रहेंगे, लेकिन पानी जो है आपको हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन जब आप इस तरह से पिएंगे तो और भी आप हेल्दी रहेंगे और खुश रहेंगे। और लेकिन पानी को ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये नहीं कि बस ऐसे ही पी लिया, बैठ के सुकून से खुशी से सिप करके पीना, यूँ करके नहीं पीना। was specifically जो initially डॉक्टर के पास जाना हुआ था, तो she said he said you have to take 1.5 लीटर 2.5 लीटर आपने पानी पीना है डेली का। और मैं उससे सोच रही थी ओहो इतना पानी पीना है, ठीक है, लेकिन always have बहुत सी सही हो have it, you keep your 1 bottle with you and try to have as much water as you can and be happy. And be happy. The last question that I have, connecting with God, दुआ करना, दुआ नमाज करना, उससे भी आप ये आपके लिए एक तरीके से मेडिटेशन ही होती है, और उससे भी आपकी कनेक्ट है बॉडी को और ब्रेन को you get more peaceful. हाँ, बेसिकली मैंने एज आई सेड अर्लियर कि हम ये एक दिन की बात नहीं है कि मैंने ओवरकम कर लिया, गुस्से को कंट्रोल कर लिया, नहीं, इट्स अ जर्नी। आपको रोज़ अपने साथ बैठना है, और फिर वो जब अपनी डीप प्रैक्टिस हो जाती है तो आप जो है आप अवेयरनेस आती जाती है, सेल्फ नॉलेज आता है, तो आप वहाँ ऊपर और कनेक्टेड हो जाते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाते हैं। तो जितने ग्राउंड यही बेसिकली जितने आप स्पिरिचुअल होते जाएंगे तो फिर गुस्सा इस तरह के इमोशंस हम पे कभी इफेक्ट नहीं कर सकते। सो हम वी विल रिमेन हैप्पी एंड हेल्थी। अच्छा, the last thing, there are various kind of people, despite of ignoring, they continuously keep repeating the same anything that how to handle such situation. अच्छा, इस पे अभी बात की थी हमने कि एक तो कुछ लोग होते हैं जिनको आपके ट्रिगर पॉइंट्स पता है, to how to make you irritate, you know how to make you irritate or make you angry. दूसरा, sometimes comes through a person who is naturally, you know, bringing you or pouring out that anger to you. You need to give an analysis कि उस बंदे की situation क्या है। आपने कोई डेडलाइन मीट करनी है, स्पेसिफिकली मैं ऑफिस की बात करूँगी, आपने कोई डेडलाइन मीट करनी है, आपने नहीं की होगी, तो उसका गुस्सा करना जायज़ है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर एक नॉर्म बना दिया गया हुआ है कि अक्सर प्यार से बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन एक नॉर्म बना हुआ है, जब तक मैं डांटूंगा नहीं, कुछ नहीं करूँगा, तो एक इंसान काम नहीं करता। सो आपको अंडरस्टैंड करना है, यू नीड टू गेट इन टू हिज और हर शू, इज दैट पर्सन इज डिस्टर्ब टुडे, मे बी नॉट हैविंग अ गुड टाइम, मे बी यू नो घर से कुछ हुआ या रास्ते में कुछ हो गया होगा, या फिर आपने डेडलाइन मीट नहीं की होगी, क्योंकि सबकी KPIs होती है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अगर आप KPI मीट अप कर रहे हैं तो लाइक फाइन। इफ समबडी इज डूइंग इंटेंशनली, उसका साइमा ने बताया था, मैं चाहूँगी साइमा उसको रिपीट कर दें। हाँ, आप उसको पुल करें, उसको आप अगर सामने, अब मुझे ये समझे आपको कोई कह रहा है या आप कह रहे हो, ठीक है, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा बार रोज़ बात कोई समझा रहा है आपको, अब आप गुस्सा हो रहे हो, या आप किसी को समझा रहे हैं रोज़ वही बात, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसको बंद कर दो। मैंने आपको पहले ही कहा कि उसको जो सुनना नहीं चाह रहा और फिर सीन क्रिएट होता है, ठीक है, तो उसको वो आप नहीं बोले, आप यहाँ से मैसेज कर दें कि नहीं, ठीक है, आप बहुत यू आर काम एंड कूल एंड यू आर काइंड एंड पीसफुल पर्सन, जो भी है। लेकिन अगर आप वहाँ से कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप रोज़ सुनने को मिल रहा है, तो आप गुस्से में अगले दूसरे बंदे को देख रहे हैं, तो आप चुप करके आप यहाँ से बेस्ट को भेजें उन्हीं को कि नहीं, वेरी काम एंड कूल पर्सन, नाइस पर्सन, आई नो ही इज डिस्टर्ब नाउ बट आई बिलीव दैट ही इज वेरी काम पीसफुल पर्सन, बार बार बोलें, ठीक है, और उनके लिए प्रेयर में भी बोले कि क्यों ऐसे हैं, ठीक है, तो आप प्रेयर भी करेंगे तो डबल जो इफेक्ट हो जाएगा। दुआ लेनी से दुआ देनी। हाँ, बिल्कुल। Pray for the people as well. So thank you so much. I think we had a good 1 hour session, and I hope you might have your cheat sheet now with you. Share this video as much as possible with your network, and एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं जितने सेशंस मेरे हो रहे हैं, मैं दोनों प्रोफाइल्स पे डाल रही हूँ, बिकॉज कभी कभी पता नहीं होता, इंस्टाग्राम रिएक्ट्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, मेरा एक अकाउंट ब्लॉक हो चुका हुआ है, सो मैं दोनों प्रोफाइल्स पे डाल रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ जितना ज़्यादा प्रोफेशनली हम लोग साउंड फील करें, बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग विद पीपल अ लॉट,
and in that manner, getting the way you're treating your clients, treat your family members as well. So if we learn how to treat with other people out in the market, we will be doing the same, practices in our house too. So thank you so much. If you guys have any other questions, please share that with me. It was worth it. Thanks, Vanessa and Simon. Thank you so much, Richie. We remember you. Or looking forward to see you soon. Second, Monday we are going to have a session with one lady. I will, after the session, I will update her flyer, and you have her profile as well. You can also follow her. She will be sharing the session over stress management. I will confirm the timing. Just the time याद नहीं आ रहा हमें कितने बजे का हमने रखा हुआ है, but Monday को we going to have one more session. And Saima, I think we need to have another session coming along with a different topic. If you guys have any queries, please message me. तो मैं Saima से एक और session और फिर हम एक recurring session align कर लेंगे जैसे हमने फहद के साथ align किए हुए हैं. So thank you so much guys, and looking forward to have you guys again, and please follow and keep growing and be a good manager of your emotions. Yes. Thank you. God bless you. Bye bye.